computer UPS available in the market, and then we will compare various types of UPS. Okay, so I have just given some introduction. So let's start with what UPS is. So here it is written an uninterruptible power supply or uninterruptible power source, UPS. It is either known as uninterruptible power supply or source. It is an electrical apparatus that provides emergency power to a load when the इनपुट पावर सोर्स और मेन पावर सोर्स फेल, मतलब कि जब आपका मेन पावर सप्लाई है, जो इनपुट सप्लाई है, दैट इज एक्चुअली not available, it is not giving you any supply, that is blackout, or there is low voltage supply, that is brownout, or high voltage supply, that is surge kind of thing. So in all these cases it gives you backup supply for some time. Okay, this is the key role, that is it is used to provide backup supply to the load, that is the device you have connected to the UPS. So that is your computer or your television set or whatever it is. So what are the other role it provides? It is listed here. The primary role of UPS is to provide short term, that we have this short term power supply. It is not that you can use UPS for the entire day. It is generally used to give backup for few hours, say 20 minutes. If you are having small UPS, it can give you 15-20 minutes of backup. If you are having large backup, so it can give you 4, 5, 6 hours of backup, but not more than that. If you're expecting it will give you backup for 2 or 3 days, it is not possible. So generally its objective is to give short term power, okay, when there is no input supply or there is brownout. Okay, this is the main objective of using a UPS. Other operations are also performed by your UPS. These are listed here. What are these? So first one is voltage spike or suspended over voltage. Okay, मतलब high voltage supply है, spike और surge, sustained over voltage, जो कि ऐसा voltage जो कि ज्यादा देर तक चल रहा है, तो स्पाइक और सर्ज आप बोल सकते हैं उसको। सडन हाइक हो रहा है पीसी वोल्टेज में, या फिर ऐसा स्पाइक जो कि है और थोड़ी देर तक सस्टेन कर रहा है, चल रहा है, तो सर्ज जिसको हम लोग बुलाते हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करना पीसी को। फिर इनपुट वोल्टेज कम हो गया, जिसको हम लोग ब्राउन आउट, बेसिकली पॉइंट नंबर 2 इज बेसिकली अबाउट ब्राउन आउट। ओके, इन केस ऑफ ब्राउन आउट आपको सप्लाई दे रहा है। voltage sag, again low voltage supply, so low voltage and high voltage supply. So basically these are nothing, these are the electrical issues that we have discussed earlier. Okay, so different electrical issues, noise we discussed, noise क्या है कि unwanted कुछ सप्लाई आ रहा है, एड ऑन होकर के आ रहा है आपका, तो उसकी वजह से जो है उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। या जो मेन सप्लाई है उसका फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक और चीज है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि यू नीड 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन इंडिया ऑल अप्लायंसेस आर डिजाइन्ड विद टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ 50 हर्ट्ज, मतलब ऑल डिवाइस शुड ऑपरेट एट 50 हर्ट्ज, है ना। इन केस you are not getting 50 hertz of frequency, that is you are getting 40 hertz, 45 hertz. In that case also your PC will not work. So in that case also it will go to UPS mode. So UPS is important there also कि इनपुट वोल्टेज क्या है, उसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है हमारे लिए, वहां पे वोल्टेज मान लेते हैं फिर भी रेंज में है, बट व्हाट इज नॉट इज द नॉट इन द रेंज इज द फ्रीक्वेंसी। ऐसा कब होता है? ऐसा जनरली नॉर्मल इनपुट सप्लाई के केस में नहीं होता है, बट ऐसा आप देखेंगे कि यू आर हैविंग योर जनरेटर ऑन, आप जनरेटर के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं, तो उसके केस में कभी जनरेटर में कुछ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है, इट इज नॉट एबल टू generate 50 hertz of frequency. It is giving you the voltage supply, but it is unable to produce 50 hertz of frequency. In that case, it will your PC will not work. So UPS will come and help your PC to work
and it will not allow it to shut down. Okay, so these are the key roles. These are basically different electrical issues: voltage spike, surge, brownout, sag, noise, and this one is low frequency. And this is generally in case of you are using generators. Okay, so these are basic purpose of using a UPS. Now let's come on to the types of UPS. Basically. Okay, so types of UPS are basically generally three types of UPS, or mainly two types of UPS are available in market. One is offline, or it is also known as standby. Other is line interactive. Basically, this line interactive is your offline now. Nowadays, no such offline UPS is there. Basically, your line interactive UPS is known as offline UPS. And the second one is the online UPS. Okay, it is also known as double conversion UPS. Okay, so mainly there are two types online in the two types of UPS are available, offline or online UPS. So what is the main purpose of UPS? We talked about it. Now just ये एंसेल कुछ दिक्कत है? तो यूपीएस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. यूपीएस इज बेसिकली बैकअप सप्लाई. ओके, बैकअप के लिए हम लोग जो डिवाइस का यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूपीएस. ओके, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि क्यों चाहिए यूपीएस, किस किस केस में यूपीएस की जरूरत है, एंड द टाइप्स ऑफ यूपीएस. ओके, तो ऑफलाइन यूपीएस या ऑनलाइन हम लोग इंटरनेट के टर्म में बोलते हैं कि वी आर ऑनलाइन, वी आर ऑफलाइन. व्हाई वी आर कॉलिंग अ यूपीएस ऑनलाइन और व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑफलाइन. ओके, so let's talk about it. So what an online UPS is? So first look into the diagram, just see the diagram, then we will go ahead with the discussion. Okay, तो ये क्या है उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे और पॉइंट्स क्या ऊपर लिस्टेड है. तो UPS, standby UPS or offline UPS basically consist of a charger, a battery and an inverter section. Okay, मतलब एक यूपीएस में ये एक इन द मार्केट ऐसा यूपीएस है नहीं. इसमें क्या हुआ है, यहाँ जो चार्जर है ये चार्ज कर रहा है. ये ग्रीन लाइन जो है ये डिनोट कर रहा है कि डिफरेंट कंडीशंस को डिनोट कर रहा है. ये जो ऊपर ये दो डायग्राम्स है, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम क्या कर रहा है, तो ये ग्रीन लाइन दिखा रहा है कि सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रहा है. तो यहाँ मेन इनपुट लाइन से ये कनेक्टेड है, ये चार्जर को मिल रहा है सप्लाई और चार्जर से हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज इसी से हम लोगों को ये सप्लाई जा रहा है, ये डायरेक्टली चला जा रहा है टू लोड. ये जो डिवाइस है ये बेसिकली द डिवाइस यू हैव कनेक्टेड टू योर यूपीएस. ये यूपीएस का ये पार्ट यूपीएस हो गया, ये उसका आउटपुट लाइन हो गया जहाँ पे कि तो हमारा ये जो यूपीएस है इसमें बेसिकली इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है. ट्रांसफार्मर अगर है भी तो चार्जर के लिए छोटा सा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है. नो बिग ट्रांसफार्मर इज देयर. तो दिस इज जनरली नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. जिसको हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस बोलते हैं वो बेसिकली लाइन इंटरएक्टिव है. ठीक है, तो ये कब है, तो इट इज इन द केस व्हेन नॉर्मल एसी इज अवेलेबल. जब नॉर्मल एसी है तो उसमें बैटरी भी चार्ज हो रहा है और आउटपुट में हम लोगों को सप्लाई भी मिल रहा है. व्हेन पावर सप्लाई ऑफ हो गया, इनपुट सप्लाई हट गया, नहीं है कोई इनपुट सप्लाई, तो मतलब ये ग्रीन लाइन देखिए हट गया, तो इस समय बैटरी एक्टिव हो गया. नाउ बैटरी से पावर कंजम्पशन शुरू हो गया हमारा, एंड ये बैटरी से सप्लाई मिल रहा है, इन्वर्टर सेक्शन एक्टिव हो जाएगा. यहाँ पे देयर इज अ स्विच. ये स्विच फिलहाल डिस्कनेक्टेड था. जैसे ही हम लोगों ने पावर ऑफ हुआ
वैसे ही ये दो स्विच है, आप देखिए एक स्विच यहाँ था, तो ये स्विच अब कनेक्ट हो गया है इन्वर्टर सेक्शन से, और यहाँ एक स्विच है, ये स्विच क्या कर रहा है, इन्वर्टर सेक्शन को बैटरी से कनेक्ट कर देगा। तो अब क्या हो गया कि थ्रू बैटरी यू कैन सी कि इन्वर्टर सेक्शन से होते हुए हमको सप्लाई मिल रहा है ना। तो बेसिकली अपना दो चीजें हम लोग कर रहे हैं इसमें। जब नॉर्मल सप्लाई है तो डायरेक्ट सप्लाई चला गया और प्लस उसमें बैटरी चार्ज भी हो रहा है। जब नॉर्मल सप्लाई नहीं है, नॉर्मल सप्लाई नहीं है मतलब क्या है, तो नो वोल्टेज मतलब पावर लॉस, ब्लैकआउट। ओवर वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज है जिसमें सर्ज स्पाइक इंक्लूडेड है। अंडर वोल्टेज मतलब ब्राउन आउट या सैग। इन केसेस में क्या होगा कि यूपीएस जो है आपका का ये सेक्शन, इनपुट सेक्शन काम नहीं करेगा, बैटरी मोड में चला जाएगा, और बैटरी से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर एक्टिव हो जाएगा, इन्वर्टर यहाँ पे आ जाएगा। इन्वर्टर का बेसिकली काम क्या है, तो इन्वर्टर का काम है बैटरी 12 वोल्ट का सप्लाई, जरूरी नहीं 12 वोल्ट का सप्लाई होगा, कोई भी एक सप्लाई लेगा आपसे 12 वोल्ट मोस्टली, एंड उस सप्लाई को वो कन्वर्ट कर देता है एसी सप्लाई, एसी आउटपुट में। मतलब इनपुट इज डीसी, आउटपुट इज एसी, है ना। तो इनपुट डीसी लिया और आउटपुट एसी दिया हम लोगों को, तो कितना वोल्ट का इनपुट, अगर देयर इज वन बैटरी तो इट इज टेकिंग 12 वोल्ट इनपुट, if two batteries are there so it will have 24 वोल्ट, है ना। तो ऑफलाइन के यूपीएस के केस में या लाइन इंटरएक्टिव के केस में जनरली एक या मोस्टली दो, इससे ज्यादा बैटरीज नहीं रहता है, मतलब कि 12 वोल्ट और 24। ओके, एंड फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 220 टू 240 वोल्ट। ओके, सो दिस इज योर ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन क्यों टर्म दिया है अभी अभी नहीं बात करेंगे, बाद में बात करेंगे इसको, है ना। तो इसमें जो मेन चीज मिसिंग दिख रहा है वो ट्रांसफार्मर नहीं दिख रहा हमें, है ना। तो दिस इज बेसिकली नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको हम लोग लाइन इंटरएक्टिव बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। तो क्या क्या लिखा है, जस्ट आई एम रीडिंग इट आउट। द ऑनलाइन और स्टैंड बाय यूपीएस ऑफर्स ओनली द मोस्ट बेसिक फीचर। जो सबसे बेसिक फीचर है वो इसमें दे रहा है, वो क्या है, प्रोवाइड सर्ज प्रोटेक्शन एंड बैटरी बैकअप। मतलब दो काम कर रहा है, हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन दे रहा है और बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को। द प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट इज नॉर्मली कनेक्टेड डायरेक्टली टू इनकमिंग यूटिलिटी, और डायरेक्टली इनकमिंग जो सप्लाई है उससे वो कनेक्टेड है। सिर्फ क्या हो रहा है, जब व्हेन द इनकमिंग वोल्टेज फॉल्स बिलो और राइजेस अबव द प्री डिटरमाइंड लेवल, द एसपीएस, एसपीएस मतलब स्टैंड बाई पावर सप्लाई हो गया, turns on its internal DC to AC इन्वर्टर सर्किटरी। मतलब जब सप्लाई है तो सीधे सीधे सप्लाई दे दिया, उसमें बैटरी भी चार्ज हो रहा है। जैसे ही चाहे तो ऑफ हो गया पावर सप्लाई, इनपुट सप्लाई ऑफ हो गया, या इनपुट सप्लाई कम हो गया या इनपुट सप्लाई ज्यादा हो गया, तो इन दैट केस क्या होगा आपका, कि उस केस में वो आपके इन्वर्टर सेक्शन को ऑन कर देगा, और इन्वर्टर सेक्शन जो है आपको ये करेगा, फिर उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, और फाइनली हम लोगों को आउटपुट मिल पाएगा, है ना। फिर विच इज पावर्ड फ्रॉम एन इंटरनल स्टोरेज बैटरी। ये डीसी कहाँ से मिल रहा है उसको, फ्रॉम अ बैटरी। इसके अंदर में एक बैटरी एक हो सकता है, मोस्टली एक होता है, कभी कभी दो भी होता है। तो यूपीएस देन मैकेनिकली स्विचेस द कनेक्टेड इक्विपमेंट ऑन टू इट्स डीसी एसी इन्वर्टर आउटपुट। मतलब एक स्विच है, बेसिकली एक स्विच जो आपका रिले वगैरह का बना हुआ रहता है, उस तरह का स्विच ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है फ्रॉम एसी मोड टू डीसी मोड और डीसी मोड टू एसी मोड। तो यहाँ पे स्विचिंग टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या इन्वर्टर, ये इन्वर्टर, ये इसको सिर्फ इन्वर्टर नहीं कहेंगे, इसको हम यूपीएस बोलेंगे, और एक सिर्फ इन्वर्टर करके मार्केट में अवेलेबल है। तो can we use inverter in place of UPS? So answer was no, or answer is no. Why? Because just the reason is switching time. Switching time क्या है, इन्वर्टर का ज्यादा है और यूपीएस का कम है। तो स्विचिंग टाइम यहाँ पे लिखा है, the switching time can be as long as 25 मिली सेकेंड, है ना। तो मिली सेकेंड, 25 मिली सेकेंड के अंदर में स्विचिंग कर देता है ना। और इन्वर्टर का स्विचिंग टाइम इससे ज्यादा है। एसएमपीएस का एक टाइम है, या एक एसएमपीएस का एक फीचर है कि
इवन आपका पावर चला गया तो भी एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो सप्लाई देता है ना पीसी को। इवन देयर इज नो इनपुट सप्लाई, कोई यूपीएस नहीं सप्लाई मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सब ऑफ हो गया है, तो भी बड़े छोटे टाइम के लिए वो सप्लाई देता है। उस टाइम को होल्ड अप टाइम बोलते हैं हम लोग। एंड voltage hold up time or hold up time, and the switching time of the backup power supply should be less than the hold up time। मान लीजिए मैं बोलूं कि 2 सेकंड है स्विचिंग टाइम, तो होल्ड अप टाइम मतलब 2 सेकंड तक वो सप्लाई देगा, 2 सेकंड नहीं है, वो मिली सेकंड्स में ही रहता है ना। तो मान लेते हैं मैं 30 मिली सेकंड्स बोल रहा हूँ, 30 मिली सेकंड्स तक कोई इनपुट सप्लाई नहीं है तो भी एसएमपीएस कंप्यूटर को सप्लाई देगा। यू कैन ऐड दिस पॉइंट टू एसएमपीएस, रोल ऑफ एन एसएमपीएस है ना। एक रोल तो है कि रिक्वायर्ड सप्लाई +5 प्लस 3.3 प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट सप्लाई देना। दूसरा रोल ये भी है कि जब सप्लाई नहीं है तो इतने देर तक सप्लाई को मेंटेन रखना, आउटपुट सप्लाई को, जब तक कि कोई बैकअप सप्लाई स्विच ना कर जाए फ्रॉम एसी टू डीसी। ओके, तो एक इन्वर्टर का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका स्विचिंग टाइम क्या है ना। तो नॉर्मली होम यूपीएस हम लोग आजकल बोलते हैं, जो घर पे इन्वर्टर्स यूज करते हैं उसको नॉर्मली यूज टू कॉल इट होम यूपीएस बिकॉज इट इज हैविंग बोथ मोड्स है ना। इन्वर्टर मोड भी है एंड यूपीएस मोड भी है। तो इन्वर्टर मोड और यूपीएस मोड में डिफरेंस क्या होगा उसमें, तो इन्वर्टर मोड में क्या होगा कि इन्वर्टर मोड में आपको वो इन इन्वर्टर मोड व्हाट विल हैपन, तो स्विचिंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा। स्विचिंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा मतलब क्या होगा कि स्विचिंग टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एडवांटेज क्या मिलेगा कि वो थोड़ा लो वोल्टेज से पिकअप कर रहा है, मतलब 160 वोल्ट से भी है तो भी वो एसी मोड पे काम करता रहेगा, बैटरी मोड में नहीं जाएगा। लेकिन यूपीएस के केस में क्या है, एडवांटेज उसका ये है कि आपको वो स्विचिंग टाइम फास्ट हो गया, जल्दी स्विचिंग हो गया, लेकिन आपको वो लो वोल्टेज से पिकअप नहीं करता, वो आपको पिकअप करेगा से 180 वोल्ट। 180 वोल्ट से जैसे नीचे जाएगा वो बैटरी मोड में चलेगा है ना। तो अगर आपके घर में लो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है तो प्रेफर टू यूज इन्वर्टर मोड। और अगर आप ऐसा डिवाइसेस को, सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस, कंप्यूटर को यूज करना है, कंप्यूटर को चलाना है, तो उस जगह पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस जगह पे आप उसको यूपीएस मोड में रखें। तो दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन्वर्टर लो वोल्टेज 160 पे भी वो नॉर्मल मोड में काम करेगा, एसी मोड में काम करेगा, 160 से या 170 से नीचे जाएगा तब जाके वो बैटरी मोड में आएगा। लेकिन स्विचिंग टाइम उसका ज्यादा है, उसके केस में क्या होगा, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा है ना। तो होल्ड अप टाइम से कम होना चाहिए स्विचिंग टाइम, तब जाकर के आपका यूपीए कंप्यूटर काम करता रह जाएगा। तो इसका आंसर, इन्वर्टर को इस्तेमाल हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्विचिंग टाइम ऑफ इन्वर्टर इज मोर देन द वोल्टेज होल्ड अप टाइम ऑफ एसएमपीएस। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो एसी मोड से डीसी मोड, एसी मोड से डीसी मोड जाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे पावर कट हुआ तो वो ये जो स्विच है ये कनेक्ट होगा, ये स्विच इससे कनेक्ट होगा और ये बैटरी मोड पे काम करना शुरू करेगा, इन्वर्टर काम करने लगेगा। जितने देर में ये इन्वर्टर वर्क करके स्विचेस कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट देगा, उस टाइम को हम लोग बोल रहे हैं स्विचिंग टाइम। सो एसी टू डीसी, और वापस जब एसी आ गया तो फिर से वापस एसी में जाना, इसको फ्रॉम एसी टू डीसी और फ्रॉम डीसी टू एसी, तो इस टाइम को ही स्विचिंग टाइम बोलते हैं। इस स्विचिंग टाइम को कम होना चाहिए एसएमपीएस के वोल्टेज होल्ड अप टाइम से है ना। और इन्वर्टर का टाइम चूंकि ये ज्यादा है, सो हम लोग जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इन्वर्टर का, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर ऑनलाइन यूपीएस। लेकिन ऐसा यूपीएस मार्केट में नहीं है। हम लोग जिसको लाइन इंटरएक्टिव अगला पढ़ने जा रहे हैं वही एक्चुअली मार्केट में ऑफलाइन यूपीएस के नाम से जाना जाता है ना। ये ऑफलाइन यूपीएस का एक सर्किट ब्लॉक डायग्राम, नॉट सर्किट डायग्राम, क्या क्या यूनिट्स आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर में होगा। तो बेसिकली इट इज हैविंग इनपुट सप्लाई, एंड ये इनपुट सप्लाई के आगे एक ईएमआई फिल्टर लगा हुआ है ना। ईएमआई फिल्टर भी होता है, सर्ज प्रोटेक्टर्स भी रहता है इसमें है ना, जो कि स्पाइक या सर्ज से बताएगा। तो ईएमआई फिल्टर का काम है कि अनवांटेड एक तरह के नॉइज को फिल्टर करना है ना। नॉइज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आ रहा है जो लाइन में, तो वो एक तरह का फिल्टर है ना। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये सीधे इधर कनेक्ट हो गया और ये यहाँ चला है
है ना। तो ये जो ऊपर वाला लाइन है ये ऐसा है, ये वाला, ये ऊपर वाला लाइन सीधे इधर कनेक्ट हो गया, ठीक है। बीच में कोई भी ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सीधे यहाँ आ गया, यहाँ मिल रहा है सप्लाई। इसको हम लोग स्टैटिक स्विच बोलते हैं। स्टैटिक स्विच जनरली एक ऐसा स्विच को बोला जाता है क्योंकि टू वे स्विच है ना, और वो मल्टीपल सोर्स में से इनपुट को सेलेक्ट करता है कि ये की वो, इसमें ये नहीं तो वो नहीं तो ये, है ना, ऐसा करके मल्टीपल सोर्सेस से। टू वे स्विच मतलब दो तरह का सप्लाई आ रहा है, एक स्टेबलाइजर के थ्रू आ रहा है, एक डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है। तो शाम के समय वोल्टेज कम हो गया तो आप टू वे स्विच यूज कर रखे, मैनुअली उसको ये करते, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, अपने आप करता है स्विचिंग, आपको इसको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे एक स्टैटिक स्विच लगा, ये स्टैटिक स्विच लगा हुआ, ये ऑटोमेटिकली यू कैन नोन एज, यू कैन से इट इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ओके। एंड मल्टीपल सोर्स से इनपुट सेलेक्ट करने का इसके पास में फैसिलिटी रहता है। तो ये एक तरह का बाईपास लाइन जैसा चीज आप समझ लीजिए, सीधे गया ये आकर के दे दिया सप्लाई यहाँ पे, अगर नॉर्मल एसी है तो। अभी क्या हो गया, यह जो है रेक्टिफायर को जा रहा है। रेक्टिफायर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक ऐसा डायोड से बना हुआ एक सर्किट है जिसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट, ठीक है। तो एसी को वो डीसी में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन वो डीसी को फिर फिल्टर करेगा। डीसी फिल्टर लगा हुआ है, डीसी फिल्टर का काम है रिपल्स को हटाना। रिपल्स को हटाना मतलब कि डीसी में कुछ एसी कंपोनेंट आ गया, मतलब इन डीसी का होने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या कर रहा है, इट इज हैविंग सम रिपल्स, उसके अंदर में कुछ रिपल्स आ रहा है ना। तो उस रिपल को वो रिमूव करने के लिए ऐसे 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 बम्प्स आ रहा है, तो वो बम्प्स क्या है, तो एसी कंपोनेंट आ गया। तो डीसी फिल्टर बेसिकली क्या करता है, डीसी फिल्टर जो एसी कंपोनेंट्स आ रहा है उस एसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर देता है, करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बैटरी। ये जो डीसी फिल्टर से होकर के बैटरी को चार्ज कर रहे हैं हम लोग, तो बैटरी को चार्ज कर रहा है, और ये बैटरी से होकर के यहाँ इन्वर्टर को जा रहा है। ये यहाँ पे बेसिकली इससे कनेक्टेड नहीं होगा, ये यहाँ पे सीधे यहाँ आ जाएगा इसके। ये जब इन्वर्टर मोड में जाएगा तो बैटरी से इन्वर्टर को सप्लाई जाएगा, और इन्वर्टर फिर से जो सप्लाई आ रहा है उसके बाद में फिर एक फिल्टर लगा हुआ है, एसी फिल्टर। एसी फिल्टर का बेसिकली रोल को अगर हम लोग बोले एक लाइन में तो ये होगा कि जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज है या हाइयर फ्रिक्वेंसीज है या जितना डिफाइंड फ्रिक्वेंसी होना चाहिए उससे ज्यादा कुछ है तो उसको हटा देता है ना। तो फिल्टर करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, जो अनवांटेड चीजें उसको हटाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। मतलब एसी को ही अनवांटेड हाइयर फ्रिक्वेंसीज को या अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को फिल्टर आउट कर रहा है ना। डीसी भी एसी को ही कर रहा है ना। एंड अगेन इट इज कनेक्टेड टू अ स्विच, जो स्विच इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये जनरली जो है ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में है। आप लोग एक रिले के बारे में जानते होंगे, तो नीरे में 3 पोल्स होता है। एक तो क्वाइल है क्योंकि क्वाइल को इनपुट सप्लाई मिलेगा, और उसके अलावा कॉमन एनओ एंड एनसी, नॉर्मली कनेक्टेड एंड नॉर्मली ओपन। इसको आप एनओ मान लीजिए, नॉर्मली कनेक्टेड, ये एनओ है, ओके, ये नॉर्मली कनेक्टेड है। और ये नॉर्मली एनओ एनसी, एनओ नॉर्मली ओपन, ये कनेक्टेड। ओपन होने का मतलब डिस्कनेक्टेड है, ओके। तो जब नॉर्मल केसेस सप्लाई आ रहा है तो ये कनेक्टेड और ये डिस्कनेक्टेड है। जैसे पावर ऑफ हो गया, इन्वर्टर एक्टिव हो जाएगा, सप्लाई यहाँ से होते हुए कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ तक सप्लाई पहुंचेगा, ओके। तो दिस इज बेसिकली योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑफलाइन यूपीएस, है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें एक इंट्रोवर्ट, इसी सर्किटरी में बस आप इनपुट साइड में क्या करो कि एक ऐसा आप ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दीजिए जो कि क्या करेगा कि ट्रांसफार्मर आपके सप्लाई को रेगुलेट करेगा। मान लेते हैं कि इनपुट में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, से 180 वोल्ट हो गया, 200 हो गया, 210 हो गया, 220 हो गया, तो क्या हो रहा है, वही सप्लाई इसको मिल रहा है ना। और 180 जनरली यूपीएस को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि 180 तक का सप्लाई को सीधे दे दीजिए आप, और 180 से नीचे जाएगा तब उसका स्विचिंग, वो जो स्विचिंग होता है बैटरी टू डीसी, एसी टू डीसी मोड और डीसी टू एसी मोड, या बैटरी टू एसी और एसी टू बैटरी मोड, वो बेसिकली 180 इज द कट ऑफ रेंज। 180 से कम हो गया तब जाकर के वो बैटरी मोड में आएगा, तब इन्वर्टर सेक्शन काम करेगा। उससे पहले तक 180 वोल्ट पे इसको लोड को काम करना पड़ रहा है। जिसको चाहिए 220 वोल्ट या 240 वोल्ट, तो वी आर फोर्सिंग इट टू वर्क ऑन 180 वोल्ट। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन यूपीएस में से एक है कि हम लोग का फ्लक्चुएशन बड़ा ज्यादा है, 180 से लेके 240 तक रेंज में वेरी कर रहा है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। से 180 वोल्ट था अभी, और 180 वोल्ट ही यहाँ मिल रहा है। और जैसे ही
170 वोल्ट हुआ, अब ये बैटरी मोड में, अब बैटरी मोड में जब आएगा इट विल गेट 240। ओके, तो बैटरी मोड में ये 240 वोल्ट पे मिलेगा तो इट इज गेटिंग 240। ओके, अब सोचो फ्लक्चुएशन कितना हो गया कि 180 वोल्ट पे काम कर रहा था सीधे 240, तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ 60। ओके, इसीलिए उसका सब्स्टिट्यूट एक लाया गया कि नहीं, इसको ऐसा करते हैं कि इसको